Kumar. My colleagues have also filed exclusive ground reports on the prevailing situation at the borders. Let's have a look at them one by one. Marathon talk between the centre and the farmers once again ended in a stalemate yesterday. Well, the talk lasted for more than 5 hours yesterday, but it was quite inconclusive. I come to you live from the Ghazipur border, and behind me you can actually see how the security measures have been ramped up here in an effort to restrict the movement of the farmers who are on a Delhi Chalo campaign. And also, very importantly, today on February 16th, they have also called for the Grameen Bharat Bandh as to nationwide strike, which they are calling, and a lot of people will have to face inconvenience due to that. But let me just show you the atmosphere over here at the Ghazipur border, because you know CRPF personnel have also been deployed here, and as the day passes by, the number will be increased to actually ramp up the security measures to beef it up. And also barricades are here, and the barbed wires have been put in so that all the security measures are put in place. They are checked in place, and if there is any kind of huge movement towards the national capital, then the movement can be restricted. Because just to understand, just to give you in a perspective, this is a very key route because if we just go over there, then it heads towards Meerut, Ghaziabad, and when we come back to Delhi, then it is towards Ashram, Central Delhi. So of course, very key route when it comes to daily commuting. The people who are office goers or just heading to their workplaces. So it's important from that aspect also. And if we just try to understand as to what's open today, then advisory has been issued in various terms, and many villages, the shops in the villages and the Manrega workers works will be shut down today. And many farm unions have actually called in their support for this Bharat Bandh today. So of course, whenever you step out, please read the advisory, and it will be important to see as to how the talks proceed further. At Ghazipur, with camera person Ankush, Akshat Gupta for News X. किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। फरीदाबाद के अगर बदरपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पहरा बिठा दिया गया। और देखिए जिस तरह से अगर पलवल और फरीदाबाद की तरफ से किसान अगर दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इससे पहले ही रोक लिया जाएगा। बाकायदा यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, कटीले जो तार हैं वो कटीले तार यहाँ लगा दिए गए हैं और आधे सड़क को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो चूंकि सुबह का वक्त है, ऐसे में ट्रैफिक जो दिल्ली अपने कामकाज के लिए लोग निकल रहे हैं उनके लिए रास्ता जरूर छोड़ा गया है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको दूर की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए इसी बैरिकेडिंग की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो धीमी गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि यहाँ और अन्य फोर्स को भी लगाया गया है। मैं इधर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ बाकायदा देखिए टेंट लगा दिए गए हैं ताकि जो पुलिसकर्मी हैं वो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और ऐसे में उनके लिए यहाँ ये व्यवस्था की गई है। अगर दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊं तो आईटीबीपी के जवान यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से। आप देखेंगे तो तमाम जवान हैं वो अपनी ड्यूटी पर यहाँ तैनात हैं और ऐसे में इनकी नज़र इसी बात को लेकर है कि कोई भी किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़ सके। इससे पहले फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी लगातार कई जगह बैरिकेडिंग कर निगरानी रखी जा रही है। तो साफ तौर से पूरी तरह से दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और अन्य जवानों की कोशिश यही है कि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सकें। हालांकि अगर दूसरी तरफ बात करें तो मंत्रियों के साथ में जो किसान हैं उनकी बैठकें लगातार जारी हैं। देर रात भी बैठक लगातार चलती रही, हालांकि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन ऐसे में अब किसानों की आगे क्या रणनीति होगी उसको लेकर भी अब देखना होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। इस तरह से किसान संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है कि आज
3 घंटे के लिए वो टोल को जो है फ्री करवाएंगे। तो उसके मद्देनज़र किसान जो है आज एक बार फिर यहाँ पर रुक सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि 2020 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी किसानों ने अपना आंदोलन शुरू करते हुए पहले कुछ चंद घंटों के लिए टोल को फ्री करवाया था, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर तनातनी बढ़ी तो उसके बाद किसान यहाँ डट गए थे और उन्होंने अपना पक्का मोर्चा इसी टोल पर लगा दिया गया था। हाईवे के इसी टोल पर जो है किसान 1 साल तक डटे रहे थे। कहीं पर विरोध प्रदर्शन, धरने, भंडारे, लंगर जो हैं इसी टोल पर किसानों ने शुरू कर दिए थे। तो ऐसे में एक बार फिर जैसे आज भारतीय किसान यूनियन चरहुनी ग्रुप यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद क्या कुछ स्थिति रहती है हाईवे के इस टोल की, वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि बीच में कई बार ऐसे हालात बने हैं जब बॉर्डर पर जो पुलिस और किसानों के बीच तनातनी बनी, लेकिन जब वार्ता की बात आई तो कहीं ना कहीं किसानों ने नरम रुख रखा था। और अब इस तरह का अल्टीमेटम आज दिया गया है किसानों की तरफ से कि दोपहर को टोल वो फ्री करवाएंगे। उसके बाद सरकार क्या कुछ रणनीति अपनाती है, टोल की सुरक्षा को लेकर पुलिस क्या कदम उठाती है, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरह से आज भारत बंद का आह्वान भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है, वो भी देखने वाली बात रहेगी कि उसका कितना कुछ असर जो है देखने को मिलेगा या लोगों का समर्थन उनको मिलेगा। इसके अलावा बात करें किसान किस तरह से मार्च करके किस तरह से सड़कों पर उतरेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन चरहुनी ग्रुप जो है आज के इस प्रदर्शन में किस तरह की भागीदारी करते हैं। तो ये किसान आंदोलन पार्ट 2 की आगामी रूपरेखा जो है आज वो तय की जाएगी और कितना कुछ असर रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। आज तारीख 16 फरवरी है और आज के दिन किसानों का भारत बंद का ऐलान है और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ये 3 लेन मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है और ये दिल्ली को मेरठ की तरफ से कनेक्ट करता है, यूपी को दिल्ली की तरफ से कनेक्ट करता है और आगे का रास्ता गाजियाबाद की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। देखिए क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, आप इंडिया न्यूज़ पे इस वक्त उगता सूरज देख रहे हैं और देखिए ये जो ट्रैफिक की स्थिति है वो इस समय सामान्य है। देखिए जैसे जैसे वर्किंग आवर्स आएंगे, पीक आवर्स आएंगे, उसको लेकर हो सकता है कि ट्रैफिक और बने, लेकिन मैं आपको पहले पुलिस की मुस्तैदी यहाँ दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेड है, ये जो आपको बड़ा सा पिंक कलर का व्हीकल दिख रहा होगा, ये असल में लक्ष्मण रेखा का काम करता है। ये कंटेनर जो है इसको बीच में प्लेस कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए यूपी से किसान यहाँ दिल्ली की तरफ कूच करते हैं क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान है, तो देखिए इस बैरिकेड को बीच में रख दिया जाएगा और मैं आपको तमाम दिल्ली पुलिस के वो वाहन दिखाना चाहूँगी जो एक लक्ष्मण रेखा का काम करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम ऐसे बैरिकेड्स वहाँ रखे हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स जिनका वजन कम से कम 100 किलो तो आराम से होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेड्स हैं इन पे कटीलीदार तारें जो है वो लगाई गई है ताकि अगर किसान पैदल आएंगे वो आगे ना बढ़ पाए और तमाम दिल्ली पुलिस की ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। अब अगर आपको मैं पीछे में लाउड स्पीकर दिखा पाऊँ, देखिए लाउड स्पीकर भी ऊपर लगा हुआ है और लाउड स्पीकर को लगाने का ये मकसद है ताकि किसानों को आदेश दिए जाए, उन्हें बताया जाए कि यहाँ आना ठीक नहीं है। और आप देख सकते हैं मेरे दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवान जो इस समय यहाँ तैनात हैं। हालांकि यूपी के किसानों के आने की अभी कोई सूचना नहीं है क्योंकि देखिए राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसानों को ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली दूर नहीं, बट क्योंकि आज भारत बंद ऐलान है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस भी पूरी तरीके से बॉर्डर पर मुस्तैद है, जिसको लेकर किसानों का ये दिल्ली आह्वान लगता है कि कठिन होगा। और आप देख सकते हैं कि देखिए जेसीबी जो क्रेन है वो इस समय यहाँ मौजूद है। अगर ये देखिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इसे कि अगर ट्रैक्टरों के जरिए किसान आए तो उनके ट्रैक्टरों को टो करा के हिरासत में लिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि देखिए जब बात किसानों की आती है तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाता है। और आज की जो कंडीशन मैं आपको दिखाऊं वो अभी तो सामान्य लग रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसको लेकर अभी 8 बजे जो है आरएएफ के जवान भी गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे और देखना ये होगा कि जैसे जैसे
टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आज का जो दिन है 6 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भारत बंद का आंदोलन जो किसानों ने किया है उसको लेकर आज किसानों का क्या रुख होता है। मैं शुभ, कैमरा पर्सन अवधेश के साथ, इंडिया न्यूज़, गाजियाबाद। किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था। इसी के तहत जिला चरखी दादरी में आप देख सकते हैं कि भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ सभी दुकानें खुली हुई हैं। जहाँ अगर रोडवेज की बात करें तो रोडवेज भी चल रही हैं अपने नियमित समय से, और यहाँ हड़ताल का बिल्कुल कुछ भी असर दिखाई नहीं दे पा रहा है। जहाँ किसानों ने दावा भारत बंद का किया था, लेकिन यहाँ असर जिला चरखी दादरी में नहीं है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने भी चक्का जाम करने का ऐलान किया था, वो भी दावे फैल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रोडवेज नियमित रूप से चल रही हैं। कुछ कर्मचारी धरने पर जरूर बैठे हैं, लेकिन शहर चरखी दादरी बिल्कुल संचालित रूप से सभी दुकानें खुली हुई हैं और यहाँ कोई भी हड़ताल का असर दिखाई नहीं दे पा रहा है। वहीं किसानों द्वारा टोल फ्री करने का ऐलान ज़रूर किया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ असर यहाँ दिखाई नहीं दे पा रहा है। अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों का कहना है कि हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी वो आगे भी हड़ताल कर सकते हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.